What's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Thursday, 30th of July, and today was the final expiry of this month, the Sensex monthly expiry. And today was truly the madness of monthly expiry. And the straddle, which had closed at 450 yesterday, opens at 320, meager 320. And throughout the day, till 12:30, there was a linear crush in the straddle, and the markets also didn't move much. Up till 12:30, the markets were within 400 point range. Of course, day open से 350 पॉइंट का एक मूव आया एंड देन देयर वाज अ बिट ऑफ रिवर्शन, बट नोवेयर इट लुक्ड लाइक द वोलेटाइल मंथली एक्सपायरी. बट at exactly 12:30 then comes a candle on the upside which blasts the calls by almost 5 to 6 times in a single minute, and then the puts almost tripled, and from that point onwards the monthly expiry madness started. And today was the last Sensex expiry where the continuous trading or the averaging was there from 3 o'clock. From next week onwards we are going into what we call the CAS, closing auction session, and today looks like the operators completely utilized the 3 o'clock averaging session to manipulate the markets like anything. If you notice the candles after 3 o'clock, the premiums were jumping 4 to 5 times in a matter of single minute, and then the premiums were getting crushed back to their original levels within the next minute. Just to give you context, at exactly 3 o'clock 77,700 call spiked to 80, came down to 13, and from there it ended somewhere around 250. So massive volatility. And अगर लोग पूरा leverage के साथ, पूरा size के साथ अगर 3 PM के बाद अगर stuck हुए रहते तो they would have lost a big amount of money. I was fortunate to be in green till almost 320. After 320 the markets kind of shot up another 150 points and the premium behavior was quite erratic, so I had to get out of the calls at exorbitant prices. तो 0.1 के आसपास मैंने आज loss book किया है, but completely happy with the way I've come out of this market because today was a brutal kind of an expiry. So tomorrow is Friday and tomorrow is the start of a new series. तो क्या ट्रेड करना है, क्या प्लान करना है, let's get to terminal and let's discuss. All right. तो मैंने ऐसे एक्सपायरी कंटिन्यूसली एक्सपेक्ट कर रहा था एंड आई एक्सपेक्टेड दैट निफ्टी मंथली एक्सपायरी में ऐसे वोलेटिलिटी आएगी, बट उतना ज़्यादा आया नहीं है. बट कल के वीडियो में मैं बार आपको वार्न किया था कि आज एक वोलेटाइल एक्सपायरी एक्सपेक्ट करो, एंड आई इवन सेड दैट देयर विल बी मल्टीपल ट्रैप्स फॉर द ऑप्शन राइटर्स. तो ऐसा है कि अगर एक ट्रैप में आप बचोगे तो दूसरा ट्रैप में फंस जाओगे, 2 ट्रैप में बचोगे अब तीसरा ट्रैप में फंस जाओगे, या चौथा ट्रैप में फंस जाओगे. आप देख सकते हैं कि पोस्ट 12:30 कॉन्स्टेंट ट्रैप्स. यहाँ पे कॉल्स 5 टाइम्स यहाँ पे हो गए एंड यहाँ पे पुट्स 5 टाइम्स हो गए, देन अगेन कॉल्स ट्रिपल हो गए एंड यहाँ पे फिर से पुट्स ऑलमोस्ट 4 गुना हो गए, एंड फ्रॉम हियर ऑलमोस्ट अगेन कॉल्स डबल देन पुट्स डबल. सो इट वॉज मैसिव मैडनेस, एंड इफ यू डिडंट टेक अ पोर्टफोलियो SL एंड इफ यू मैनेज टू कम आउट इन ग्रीन, great achievement. Even if you took a minor loss, no problem at all. मेरा कैसा था, even at this point, till this point 1520, I mean 320 के आसपास मेरा जो MTM था green था, but then this up move kind of spiked those 1 OTM calls which were trading at 2 rupees. मैं ये 2 रुपये 0 पे जाएगा करके मैं स्क्रीन के सामने था नहीं, but 2 मिनट्स के अंदर मैं वॉशरूम होके मैं वापस आया. दीज ऑप्शंस वर ऑलमोस्ट एट 20 एंड देन आई डिडंट थिंक ट्वाइस, लाइक आई हैड टू कट एट द रैंडम प्राइजेस. तो यहाँ पे मेरा कुछ 0.1% के आसपास कुछ गलत इसमें लॉस हो गया. बट आई थिंक लाइक आई एम द वन टू ब्लेम, बिकॉज यहाँ पे स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू लर्न इज अकाउंटेबिलिटी. मैं ये नहीं बोल सकता कि मार्केट्स मेरे साथ बेइंसाफ़ी की ना, सॉरी मार्केट मेरे साथ नाइंसाफ़ी की एंड मार्केट मेरे साथ बेईमानी की, क्योंकि ये 2 रुपये का ऑप्शन तो जीरो जाना ही था, बट लास्ट 5 मिनट में कैसे ये जा सकता है. ऑल दैट इज एक्सक्यूज. वी हैव टू टेक 100% ओनरशिप. यहाँ पे जो भी हुआ लॉस मेरे हिसाब से हुआ है, आई एम द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, बट ज़्यादा नहीं, 0.1% के आसपास ही लॉस हुआ, विच आई एम एनी वे वॉज विलिंग टू टेक. ठीक है. सो टुमारो इज़ अ फ्रेश सीरीज एंड फ्रॉम टुमारो सम न्यू रूल्स आर गोना बी इम्प्लीमेंटेड, एंड कल के लिए आई थिंक कल एक दिन हमको मार्केट से बाहर बैठना पड़ेगा, बिकॉज आई वुड नॉट एक्सपेक्ट प्रॉपर प्राइस एक्शन टू एक्चुअली हैपन टुमारो. थोड़ा बहुत वियर्ड रह सकता है कि आपका जनरल जो मार्केट्स को देखे है उसके अगेंस्ट थोड़ा मार्केट बिहेव करने का चांसेस है, बिकॉज वन इज द इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट मेकर्स HFTs जो कैसे पोजिशन करते हैं वो थोड़ा वेरी होने वाला है. ऑफकोर्स 3 o'clock के बाद उसका इफेक्ट जो है प्रोनाउंस्ड रहेगा, बट एज a precaution I would try to completely avoid trading tomorrow. वैसे तो फ्राइडे है, बिकॉज ईरान एंड US के बीच में कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ रहा है, एंड ट्रम्प इज़ ऑल्सो सेइंग दैट
the attacks on Iran are going to only get intensified from here on, and Trump, I'm going to, give a massive beating to Iran. ऐसे statements Trump दे रहा है. And yesterday the US markets didn't react well for the Fed announcement. Rate unchanged रहा, and S&P 500 and Nasdaq, they both fell massively. So tomorrow this is again my opinion, तो it's better to not trade. But अगर आपको 100% ट्रेड करना ही है तो then we'll only trade the breakouts and the retests. हम कल मीन रिवर्शन ट्रेड्स हम डिफिनेटली प्लान नहीं करना चाहिए, बिकॉज आज भी मार्केट्स ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास क्लोज हुआ है. तो अगर मार्केट इस रेंज में अगर ओपन होता है एंड 10 o'clock के पहले एक ब्रेकआउट मिलता है तो ब्रेकआउट होने दो, एंड देन व्हेन द मार्केट रीटेस्ट, इस रीटेस्ट पे हम लोग वापस इसको बाई करेंगे ताकि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो काफ़ी छोटा रह सके. अगर मार्केट में एक सरप्राइज गैप डाउन आता है तो देन विल वेट फॉर द मार्केट्स टू कम नियर दीज लेवल्स. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो अ डोजी काइंड ऑफ अ कैंडल. यहाँ पे भी थोड़ा बहुत डिमांड आया है, बट आई वुड वेट फॉर द मार्केट्स टू एक्चुअली कम नियर 24,150 लेवल्स. एंड यहाँ पे मेरे को जनरली एक अच्छा एंट्री मिलना चाहिए. एंड अगेन आई एम सेइंग, अगर आपको ट्रेड करना भी है 10 या 15% साइज से ही ट्रेड करो. एंड अगर बट माई ओपिनियन इज एंड माई एडवाइस इज, कल एक दिन पूरा मार्केट से बाहर बैठने से कोई नुकसान नहीं है. ठीक है ना. अगर मार्केट एक बड़ा गैपअप के साथ खुलता है, 24,500 के आसपास खुलता है, तो 24,500 इज अ गुड रेजिस्टेंस पॉइंट. तो हम लोग एक मीन रिवर्शन ट्रेड, बेसिकली एक गैप क्लोजिंग के लिए हम लोग ट्रेड कर सकते हैं. सेम फंडामेंटल प्रिंसिपल, फर्स्ट 5 मिनट का जो कैंडल है फॉर्म होने को देना है, एंड अगर इसका लो ब्रीच होता है तो हम लोग शॉर्ट करेंगे. उसका जो हाई है कैंडल का हाई, वो स्टॉप लॉस रहेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा बहुत इतना ही गैपअप हुआ, लेट्स से 40-50 पॉइंट्स का गैपअप हुआ या 40-50 पॉइंट का गैप डाउन हुआ, अगेन मार्केट्स might go into some sort of a consolidation with a lot of volatility. So I would definitely not want to participate in that choppy price action, considering the fact that it's a Friday and markets are not confident of going into the weekend with either a lot of optimism or with a lot of anxiety. तो हमें पता नहीं कि स्ट्रैडल कैसे बिहेव करने वाला है. बिकॉज अगर निफ्टी की स्ट्रैडल की बात करें, कैन नोटिस दैट आज भी स्ट्रैडल काफ़ी एराटिक तरीके से बिहेव किया. व्हेन दैट ब्रेकआउट हैपेंड, देयर वाज अ मैसिव स्पाइक एंड इमीडिएटली वो स्पाइक कूल ऑफ भी हो गया, एंड अगेन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ट्रेडिंग सेशन देयर हैज़ बीन सम अमाउंट ऑफ स्पाइक. बट 220 ऑन अ थर्सडे क्लोजिंग इज नोवेयर अ राइट प्राइसिंग ऑफ प्रीमियम्स इन माई ओपिनियन. तो कल हो सकता है कि अगर थोड़ा बहुत मार्केट नीचे आना शुरू हो तो देन इट माइट गो अप टिल 250. एंड अगर आज के रात को या कल एक कुछ और न्यूज़ आ जाता है ट्रम्प के साइड से, तो देन प्रॉबली मार्केट्स माइट गो इनटू दैट रिस्क रीप्राइसिंग. जो रिस्क रीप्राइसिंग बोलते हैं, जहाँ पे स्ट्रैडल प्रीमियम सडनली सर्ज हो जाता है, वी कैन सी दैट एज वेल. दैट इज़ वाई कल के प्राइस एक्शन एंड कल का जो बिहेवियर है मेरे को थोड़ा डाइसी लग रहा है. बिकॉज हाल ही अभी रिसेंटली, मतलब कल ही फेड का अनाउंसमेंट भी हुआ है एंड ट्रम्प ने भी कॉन्स्टेंटली वापस फिर से थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दे रहा है. तो टुमारो आई वुड नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन द मार्केट्स. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, एज आई सेड, इफ़ यू आर काइंड ऑफ अ कंपल्सिव ट्रेडर, अगर आपको ट्रेड करना ही है तो जैसे मैंने कहा कि विल ट्रेड द ब्रेकआउट ऑफ दिस, breakout and retest of this, and we'll trade the mean reversion around these levels, that is 24,150 levels. and अगर बड़ा वाला gap up मिलता है तो then we'll trade the gap fading. basically first 5 मिनट का जो लो है वो ब्रीच होते ही हम शॉर्ट करेंगे with the high of the candle as the stop loss. अगर मार्केट इसके बीच कहीं पे भी छोटा मोटा गैप खुलता है तो then let's not try to call the bottoms and tops at these particular resistance or supports. तो basically वहाँ पे थोड़ा बहुत choppy price action होने का chances ज़्यादा है. So let me know in the comments आज का expiry आपका कैसा रहा, and also let me know whether मैं जो warning दे रहा था continuously 2 expiry से, आज आपके लिए काम आया कि नहीं. because if you had positioned yourself like with a lot of size, then probably today would be the day where you would have been seeing wild MTM swings and probably would have ended up with a massive loss. तो अगर ऑप्शन बायर्स है तो लेट मी नो आज का एक्सपायरी आपके लिए कैसा रहा, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.